Hi everyone, a very good evening to all of you. Guys, if you have given your CA final exams and you are awaiting your results, so I think in about a month time you will get your results. And right now you may be thinking, like, what field you will choose for your career, whether you want to go for practice, whether want to start, continue with your service as in employment, or you want to pursue some other career as a content creator, as an influencer, or maybe you want to just do your business, or handle your family business. So these may be a lot of questions. And I must say, if you have already started finding your answers, so that's really really great for you. And this particular video is for all the students who are thinking that post their results they want to pursue jobs. So I have had some learnings in my GMCS session today, which was all dedicated to how your professional CV should look like once you start appearing, applying for jobs, and how should be your approach, right? So guys, be prepared. Though you are waiting for your result, but keep thinking positively about it. Like, if you get your once you get your result and you see all, pass in all the groups, and like, now you are going to you have become a chartered accountant, you will apply for your membership. Meanwhile, you will also start your journey of looking for jobs, right? So let me share my few of my learnings from the session. Your CV should look like, and what information it must contain. So I'm assuming, if you are appearing for, applying for jobs now, post your articleship, you might have gained you must have gained a good amount of work experience from your articleship, and you have got exposure over there. Some of you might have already started working somewhere else while you were also giving your CA finals, and some might be, giving the applying for job for the first time post their articleship, so they only have articleship ka experience. In both the cases, you all have your articleship ka experience, right? So ensure that in your CV, while you have all the cosmetic effects in your CV, you are spending a good amount of time thinking what are the activities, assignments, and engagements that you have performed while you were doing your articleship. Very important. Think about it, and then only put what impacts did you make, how you had worked as a team, what results you have brought for the client. Do not mention the client name. Maybe when you are going for an interview, during that interview, you may discuss about your client name, but do not mention the client name. Rather, mention about the work exposure that you got with that client, right? So this is where your main content is going to be, and I'm sure around that only your interview questions might be asked, apart from the other set of questions that the organization may be looking. Right now, how your CV should look like, उसके थोड़े cosmetics parts के बारे में मैं बात कर देती हूँ. So when you make a CV, if you are a fresher, make sure your CV is not extending beyond 2 pages. ठीक है, 2 pages में अच्छे से आपका CV का content आ जाएगा. ये हमारे फैकल्टी ने आज हमको समझाया था. सो दो आई हैव अ एक्सपीरियंस, आई ऑलरेडी हैव अ एक्सपीरियंस, यू गाइज नो अबाउट माई 10+ years का वर्क एक्सपीरियंस. I still feel that, the learnings that I got from this session, I can use some in improving my current CV. ठीक है. सो पहली बात, जो आपका CV रहेगा, आप एज अ फ्रेशर जा रहे हैं, तो आपका वर्क एक्सपीरियंस आर्टिकलशिप का इंक्लूड करके, एंड जो भी आपने काम किया है वो इंक्लूड करके, वो 2 पेजेस से ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहिए. That is one thing. ठीक है. When you start your CV, please do not, use a lot of colors. Make ATS friendly CVs. So ATS friendly CV बोला जाए तो बेसिकली एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम होता है कंपनीज के पास में और HR एजेंसीज के पास में, जिसके थ्रू वो आपके CVs निकालते हैं. ठीक है. अच्छा. सी तो जब आपके सीवीज निकालेंगे एंड सिस्टम अगर ट्रैक ही नहीं कर पाएगा, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकता है. करेक्ट. सो यू मेक श्योर वॉट एवर CV format you are using, it is ATS friendly. Now, to make your job easy, I will already attach the link of Google Drive, जहां पर कुछ ATS friendly CV के सैंपल्स होंगे. आप उसको बेस ले सकते हैं, उसमें अपनी चीजें एडिट कर सकते हैं, अपना ब्रेन अप्लाई करेंगे, वर्क एक्सपोजर्स अच्छे से लिखेंगे. यू कैन यूज दोज डायरेक्टली. मेरे पास कुछ 6-7 CV का फॉर्मेट है, दैट टू आई हैव गॉट फ्रॉम द ICAI फैकल्टी.
ठीक है, दैट इज अबाउट योर सीवी का फॉर्मेट, आप ऐसे यूज कर सकते हैं, नो कलर्स और नथिंग। नाउ कमिंग टू योर एटीएस फ्रेंडली सीवीज का सैंपल्स, तो आई विल प्रोवाइड इट टू यू, ठीक है। नाउ बहुत सारे बच्चे के मन में सवाल होता है कि शुड वी अटैच फोटो, शुड वी नॉट अटैच फोटो। सो द गाइडेंस आई हैड रिसीव्ड in my GMCS batches, you can attach your photo. नाउ फोटो अटैच करने से क्या फायदा होता है कि जब कोई भी इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू लेने के लिए वाला है, सो दे हैव एन आइडिया, थोड़ा सा आपका फोटो देख करके उनको एक तरीके से आइडिया आ जाता है कि हु आर द पर्सन विथ हुम दे आर गोइंग टू डील विथ इन द इंटरव्यू सेशन, राइट। तो वो थोड़ा सा एक फेमिलियरिटी का फैक्टर आ जाता है। बट कैसे आप फोटो लगाएंगे, प्लीज अंडरस्टैंड, वहां पर अपना फोटो ना, पासपोर्ट साइज फोटो आप चिपका मत दीजिएगा ग्लू से या सेलो टेप से। रादर व्हाट यू कैन डू इज, यू स्कैन योर फोटो, स्कैन करके उसको डिजिटली अटैच करिए। सो दैट वे द चांसेस ऑफ योर फोटो बीइंग मिसप्लेस्ड और उसका स्टेपलर निकल जाए, ये सब इश्यूज नहीं रहेंगे, राइट, एंड इट विल लुक वेरी नीट ऑल्सो। ठीक है, सो हमने क्या किया, बात किया एटीएस फ्रेंडली सीवीज का सैंपल का बात कर लिया, मार्जिन के बारे में बात कर ली, फोटो के बारे में बात कर लिया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका वर्क एक्सपोजर। प्लस आप फ्रेशर हैं तो मेक श्योर करिए 2 पेजेस से ज्यादा आपका सीवी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो हेडिंग होता है, जहां पर आपका नाम लिखते हो, नीचे नंबर, ईमेल आईडी, आपका जो टॉप सेक्शन रहता है, प्लीज इंश्योर करिए कि वहां पर आप 14 या 16 का फॉन्ट साइज यूज कर रहे हैं। रेस्ट ऑफ द कंटेंट जो रहेगा उसमें आप 12 का फॉन्ट साइज यूज करेंगे, उससे आपका सीवी बहुत अच्छा दिखता है, ठीक है। इट इज रीडेबल एंड इट विल ऑल्सो लुक्स वेरी सिस्टमेटिक, ठीक है। छोटा फॉन्ट मत यूज करिए, बहुत बड़ा फॉन्ट मत यूज करिए, फॉन्ट साइज आपका 12 रहना चाहिए, ठीक है। नाउ सीवी के फॉन्ट डिजाइन या कौन सा फॉन्ट आप यूज करेंगे सीवी लिखने के लिए, तो उसके लिए भी आप प्लीज याद रखिए कि पहली बात एक ही फॉन्ट चलता है, जो कि टॉप से लेकर बॉटम दोनों पेज जितने भी पेजेस है वहां पर सब जगह आप एक ही फॉन्ट यूज करने वाले, ठीक है। एंड वहां पर फैकल्टी का सजेशन था टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन करके अगर आप यूज करेंगे तो उससे सीवी एकदम सिस्टमैटिक दिखता है। दैट फॉन्ट इज वेरी वेल यूज्ड एवरीवेयर इन द प्रोफेशनल बैकग्राउंड, सो एवरीबडी इज अवेयर की familiar with that font and it looks very professional also, ठीक है। सो ये चीजों का ध्यान रखेंगे। फॉन्ट साइज का बात कर लिया, एटीएस फ्रेंडली सीवीज के सैंपल्स की बात कर ली हमने, वर्क एक्सपोजर कंटेंट किस तरह से होना चाहिए, क्या इम्पैक्ट्स आपने डाला वो हमने बात कर लिया, ठीक है। these make sure that you are taking care of these points. नाउ सीवी बनाने के बाद में दो यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर आईसीआई कैंपस और सम ऑफ कैंपस वगैरह भी, मतलब आप अप्लाई करेंगे जॉब्स के लिए, मेक श्योर करिए उसके पहले 2 चीजें करेंगे आपके रिजल्ट आते साथ ही, आपका रिजल्ट का स्टेटस वहां पर अपडेट करेंगे अपने सीवी पे, और आपका सीवी अपलोड करेंगे 2 वेबसाइट्स में, विच इज फर्स्ट इज naukri.com, दूसरा monster.com, right? What are the websites that I suggested? So, naukri.com and monster.com. अभी कहाँ आपको नहीं अटैच करना है, राइट। सो यू माइट हैव कम अक्रॉस मेनी अदर वेबसाइट्स ऑल्सो, आपको पता चलेगा जॉब्स के बारे में जो हेल्प करते हैं, राइट। सो आप वहां पर ध्यान रखिए, नेवर अपलोड योर सीवी ऑन shine.com एंड timesjob.com। ये 2 वेबसाइट्स एब्सोल्युटली अनप्रोफेशनल वे में काम करते हैं। द होल बिजनेस मॉडल वो कैसे रन कर रहे हैं आई डोंट नो, बट प्रोफेशनल मार्केट में उनका वैल्यू बहुत नीचे होता है, राइट। सो प्लीज डो नॉट अपलोड योर सीवी ऑन shine.com और timesjob.com। वो अननेसेसरी आपको कोर्सेज बेचेंगे, आपके एक एक सीवी ड्राफ्ट करने के लिए 8,000 10,000 रुपए मांगेंगे, एंड आपको कॉल कर करके परेशान कर सकते हैं। तो ये 2 वेबसाइट्स को नहीं करना है, किसको नहीं करना है, shine.com एंड timesjob.com को। एंड कहाँ पर सीवी अपलोड करना है आपको, naukri.com को और monster.com को, ठीक है। सो हमने मार्जिन ऑन सीवी की जो बात की थी ना, वहां पर ध्यान रखिए, मेजरमेंट जो रहेगा वो सेंटीमीटर्स नहीं, आप इंचेस रखिए। तो टॉप बॉटम और राइट हैंड साइड में 0.5 इंचेस एंड लेफ्ट साइड में 1.5 इंचेस, इतना मार्जिन रखना है आपको, ठीक है। प्रिंट जो रहेगा ना वो एकदम सादे पेज में मत लीजिए, सादा पेज बहुत लूज रहता है, एंड व्हेन द एग्जीक्यूटिव और ऑफिसर्स हु आर इंटरव्यूइंग यू आर टेकिंग दैट सीवी, हैंडलिंग दो सीवी, वो इधर उधर ऐसे गिरेगा। सो एक अच्छे से एग्जीक्यूटिव पेज में आप प्रिंट ले सकते हैं। एंड एग्जीक्यूटिव पेज या वो पेज का नाम मैं आपको जस्ट बताती हूँ,
एग्जीक्यूटिव बॉन्ड A4 ये हमारे फैकल्टी ने हमको समझाया। आपका जो सीवी जो रहना चाहिए वो एग्जीक्यूटिव बॉन्ड A4 पेज पे रहना चाहिए, वो उसका क्वालिटी बहुत अच्छा जाता है, पेज का ब्राइटनेस बहुत अच्छा रहता है, योर कंटेंट विल लुक गुड, राइट। दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स, प्लीज मेक श्योर कि आप इसका ध्यान रख रहे हैं, बिकॉज दिस इज द बिगिनिंग ऑफ योर करियर। द बेटर यू स्टार्ट द बेटर योर रिजल्ट्स विल बी, ठीक है। स्मॉल स्मॉल चीजें मैटर करती हैं। देन एक इंपॉर्टेंट चीज है, आईसीआई के साथ में ना, आईसीआई ऑल्सो कंडक्ट्स मॉक इंटरव्यूज, ठीक है। आपका सीवी बन गया, आपका नॉलेज बेस्ड टेस्ट करने के लिए यू कैन एक्चुअली अप्लाई फॉर मॉक टेस्ट फ्रॉम ऑन आईसीएआई वेबसाइट, जिसमें क्या होता है कि आप जब रजिस्टर करते हैं तो आपको एक स्लॉट मिल जाता है, स्लॉट के अकॉर्डिंगली आप घर बैठे बैठे मॉक टेस्ट दे सकते हैं, मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। और वो मॉक इंटरव्यू के लिए क्या होगा, इंटरव्यू पैनल पे दो लोग रहेंगे आईसीआई के फैकल्टी का, एक जो सीए के रिलेटेड बात करेंगे, एक जो है नॉन सीए जनरल चीजों के ऊपर बात करेंगे, आपके पर्सनालिटी के ऊपर बात करेंगे आपसे इंटरव्यू में, और उस तरीके से आप इंटरव्यू कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री होता है ये। प्लीज मेक श्योर यू आर यूटिलाइजिंग दिस फैसिलिटी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बिफोर यू गो फॉर एक्चुअल इंटरव्यूज यू शुड हैव सम प्रैक्टिस फ्रॉम योर साइड, ठीक है। एंड yes, so these were the basics of CVs. Please ensure that you are following that. Do let me know if you need any more information on the CV part में। career के part में जो guidance है ना, उससे related भी I will upload a detailed video where I, whatever questions you will have, because every day I am also getting this information from the faculty. Today there was one more session जहाँ पर faculty ने समझाया कि CA में आने के बाद में, CA हो जाने के बाद में आपको practice अगर करने के लिए सोचना है तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्या आप कोर्सेज कर सकते हो आपका वैल्यू एनहांस करने के लिए, हाउ यू शुड गो अबाउट इट, ये सब भी लर्निंग्स मिले। तो इन द कमिंग वीडियोस आई डू शेयर दोज information, hence please subscribe to my channel if you are looking for more value addition from my end, and thank you so much for watching till here. Thank you and have a great day ahead. Bye everyone.